ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਫॉर ਵੇਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਥੈਲਪੀ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਟਰੋਪੀ ਚਾਰਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਫਟਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਜੋ ਵੇਪਰਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਡਰਾਈ ਐਂਡ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੇਪਰਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬਿਫੋਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁਪਰ ਹੀਟਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਬ ਕੂਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁਪਰ ਹੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਵੈਨ ਦਾ ਵੇਪਰਸ ਆਰ ਵੈਟ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ, ਕਿ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਪਰਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਵੈਟ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਚਾਰਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਟਰੋਪੀ ਚਾਰਟ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਥੈਲਪੀ ਚਾਰਟ। ਔਰ ਇਹ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਾਰਟ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਡੋਮ ਡਾਇਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਟਰੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੋਮ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਟਰੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੁਝ ਟੇਢੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵੇਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਫਸਟ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਥਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਟੂ ਫੋਰਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 4 to 1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਾਡਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਡਰਾਈ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਲਾਈਨ। ਸੋ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਇਸ ਗਿਵਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫਟਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਵੈਟ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਟ ਕਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੈਟ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 to 2 ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਈਸੈਂਟ੍ਰੋਪਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟਰੋਪੀ ਸਾਡੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗੀ 1 to 2। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1 to 2 ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਥੈਲਪੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਐਂਥੈਲਪੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਥਰਡ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ। 4 to 1 ਅਗੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਸੇਮ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਕੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 1 to 2 ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੈਟ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਹੁਣ ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ COP ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। COP ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਓਵਰ ਵਰਕ ਡਨ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡਾ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਸ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦਾ ਜੋ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਨੈਟ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਮੇਰਾ ਜੋ H1 ਆਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੋ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ COP ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ COP ਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਓਵਰ ਵਰਕ ਡਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ N/W ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ H1 - HF3 upon H2 - H1। ਇਹ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਈਆਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਚਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ
कि जो प्रैशर इंथैल्पी चार्ट है इस केस दे विच जो साडा H1 है जां जिन्हों सीधी असीं गल कर ली जो साडा रैफ्रिजरेटिंग इफैक्ट दा एरिया है वो आ रहा है 1 to 4। ये साडे कोल रैफ्रिजरेशन दी प्रोसैस है, इवैपोरेशन जिथे हो रही है। सो इस जगह दे कोरसपोंडिंग जो इंथैल्पीज दी वैल्यू हैगियां ने H1 1 दे कोरसपोंडिंग एंड 4 दे रिस्पैक्टिव साडे कोल पॉइंट आ रहा HF3 या H4 दे बराबर। सो इस केस दे विच साडी फिर जो वैल्यू आएगी सानू आ लाइन दी वैल्यू चाहिदी है। स्टार्टिंग तो इत्थों तो देखांगे साडे कोल इत्थे तक HF3 है, स्टार्टिंग तो ओरिजिन तो लैके इत्थे तक साडी H1 है और इन्ने पोर्शन की लेंथ असीं कैलकुलेट करनी है। साडे कोल आ जाएगी H1 माइनस HF3 एंड सिमिलरली असीं वर्क डन बाय द कंप्रैसर कैलकुलेट करना तो वो आ जाएगा साडे कोल H2 माइनस H1। सो इसे चीज़ नूं असीं इस जगह के उत्ते भी नोट किया होया कि साडे कोल जो वैल्यू आनी है दैट इज़ कुछ इस तरीके दी आ जाएगी COP इज इक्वल्स टू H1 माइनस HF3 ओवर H2 माइनस H1। सो इस तरीके दे नाल असीं इसदी COP कैलकुलेट कर लांगे ईजीली। नैक्सट कंडीशन साडे कोल इस तरह की आ रही है जी वैन द वेपर्स आर सुपर हीटिड एट द एंड ऑफ कंप्रैशन, कि कंप्रैशन होने तो बाद जो साडी कंडीशन ऑफ वेपर्स है वो किस तरह की है, सुपर हीटिड है। मतलब कि जो सैकेंड पॉइंट साडा होएगा वो सुपर हीटिड रीजन दे विच किते लाई करेगा। हुण सामने असीं डायग्राम देख रहे हैं, असीं चार्ट देख पा रहे हैं। सब तो पहला असीं गल करांगे टैंपरेचर एंट्रोपी चार्ट, दैन प्रैशर एंथैल्पी चार्ट। हुण फस्ट की गल करते हैं टैंपरेचर एंट्रोपी चार्ट की। इस केस दे विच जो साडियां प्रैशर लाइनस हुंदियां ने, असीं सब तो पहला एक वीडियो देखिया सी, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच भी दे दूंगा। सो उत्थे असीं देखिया सी जो साडियां प्रैशर लाइनस हुंदियां ने वो कॉन्सटेंट प्रैशर लाइनस कुछ इस तरीके नाल प्लॉट हुंदियां। लिक्विडस रीजन दे विच साडे कोल टेपर्स आंदियां ने, जिन्ना साडे कोल वैट रीजन है उस दे विच बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइनस आंदियां ने जो रिप्रजेंट करदियां ने साडा उसदा रीजन जिस जगह के उत्ते साडा फेस चेंज हो रहा फ्रॉम लिक्विड टू वेपरस, वैट रीजन नु सारा। उस तो बाद जो सुपर हीटेड रीजन दे विच जांदियां ने तो फिर ये लाइनस एग्जैक्ट उपर वालों स्ट्रेट हो जांदियां ने इनक्लाइंड फॉर्म दे विच। सो इत्थे असीं देख भी रहे हैं कुछ इस तरीके नाल लिखा हुआ है कॉन्सटेंट प्रैशर लाइनस। ये मेरे को अलग प्रैशर लाइन है, ये मेरे को डिफरेंट प्रैशर लाइनस है। इन्हां दो प्रैशर लाइनस दे इन बिटवीन असीं सारा काम कीता। सो इत्थे असीं देख रहे हैं कि आफ्टर कंप्रैशन जो साडा पॉइंट है सैकेंड पॉइंट वो साडे कोल सुपर हीटेड रीजन दे विच लाई कर रहा और सानू पता है 1 to 2 एक स्ट्रेट प्रोसैस है जिथे साडी एंट्रोपी कॉन्स्टेंट है क्योंकि ये एक आइसेंट्रोपिक प्रोसैस है। सो 1 to 2 साडे कोल आ गई कंप्रैशन दा प्रोसैस और इधर भी असीं देख पा रहे हैं कि जो साडी लिक्विडस लाइन है सैचुरेटेड वेपर लाइन है और इस लाइन तो साडा जो सुपर हीटेड रीजन सी उधर वालों साडा सैकेंड पॉइंट शिफ्ट कर गया 1 to 2। हुण फस्ट पॉइंट असीं कित्थे लिया है ड्राई एंड सैचुरेटेड लाइन ते वेपरस लाइन दे उपर। इहदा मतलब H1 दे केस दे विच हुण इत्थे जिहड़ा असीं ड्राइनेस फ्रैक्शन दी वैल्यू लैनी है x दी वैल्यू फॉर 1 पॉइंट वो होएगी साडे कोल 1। सो इत्थों तो असीं सैकेंड पॉइंट वाल नूं जा रहे हैं, एक कर्व लगाई है असीं और उत्थों असीं जदों वापस आवांगे तो साडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होएगी। हुण तुसीं इत्थे देखोगे कि इत्थे असीं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लाई है और इत्थे साडे कोल ये पहला लाइन प्रैशर ड्रॉप हो रहा, कुछ टैंपरेचर ड्रॉप हो रहा। सॉरी मैं गलत कह गया, प्रैशर ड्रॉप नहीं हो रहा, टैंपरेचर ड्रॉप हो रहा। टैंपरेचर ड्रॉप हो रहा उस तो बाद फिर स्ट्रेट चलेगी। तो ये फर्क क्यों आ, क्योंकि इस डायग्राम दे विच टैंपरेचर एंट्रोपी चार्ट दे विच जो साडियां प्रैशर लाइनस ने वो कुछ इस तरीके दे नाल प्लॉट होंदियां ने और दूसरे केस दे विच प्रैशर एंथैल्पी चार्ट दे केस दे विच साडे कोल प्रैशर लाइनस बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म दे विच होंदियां ने, हॉरिजॉन्टल होंदियां ने। सो सैकेंड पॉइंट तो असीं 2 डैश दे उत्ते आ गए। 2 डैश पॉइंट साडा एग्जैक्टली लाई करेगा ऑन साडे वेपरस लाइन दे उपर, सैचुरेटेड वेपर लाइन दे उपर। बाकी दा प्रोसैस एज इट इज साडा सेम रहेगा 2 to 2 डैश 2 डैश टू 3 साडे कोल अगेन कंडेंसेशन दा प्रोसैस, 3 to 4 नैक्सट साडा एक्सपेंशन दा प्रोसैस, 4 to 1 अगेन साडा इवैपोरेशन दा प्रोसैस। इन्हां ही प्रोसैसिस नूं असीं प्रैशर एंथैल्पी चार्ट दे विच भी देख पा रहे हैं 2 2 डैश 3 3 to 4 4 to 1। इसे तरीके दे नाल असीं रिप्रजेंट करते हैं इस तरह की कंडीशनस नूं। नाउ गल करांगे इहदे COP दे बारे कि इहदा COP असीं किस तरीके नाल कैलकुलेट करना। जिवें कि असीं पहलां भी इहदे विच डिस्कस कीता कि जो साडी COP है उस नूं कैलकुलेट करन दा साडा फॉर्मूला सेम ही रहना। असीं पिछले फॉर्मूले दे विच भी देखिया COP दे फॉर्मूला साडा सेम सी H1 माइनस HF3 H2 माइनस H1। फॉर्मूला साडा चेंज नहीं होना,
सिर्फ साड़ियाँ कंडीशनस चेंज होकर सिर्फ वो इफैक्ट की वैल्यू चेंज होनी है। जिमें कि इस जगह पर असीं देख रहे हैं वर्क डन बाय द कंप्रैसर जो है उसनों कुछ इस तरीके दे नाल असीं लिया एरिया 1 2 2-3A1। हुण इहनूं असीं जे ग्राफ के उत्ते देखीए तो साडे कोल कुछ इस तरीके दे नाल आ रहा 1 2 2-3A एंड अगेन 1 तक। तो इस केस दे विच असीं देखते हैं कि साडा हुण सुपर हीटिड रीजन दे विच जाण करके एरिया कुछ डिफरेंट हो गया, एरिया कुछ वध गया। दैट मीन साडा जो वर्क डन बाय द कंप्रैसर सी उहदे विच कुछ ना कुछ साडा फर्क आया, इंक्रीज आया। तो उहदे करके कितना इंक्रीज आया ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏਰੀਆ 14EF ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਆ ਰਿਹਾ 14EF। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। अगर मान लो हुण मेरा सैकेंड पॉइंट जो आफ्टर कंप्रैशन ड्राई एंड सैचुरेटेड हुंदा तो वो मेरा सैकेंड पॉइंट कित्थे लाई करना सी जिथे हुण मेरा 2- पॉइंट है। तो इस पॉइंट के उत्ते हुण साडी जो वैल्यू आएगी वो किस तरह की आएगी कि रैफ्रिजरेटिंग इफैक्ट साडा सिर्फ इन्ना ही हुंदा जो ये असीं दिखा रहे हैं। बट इस केस दे विच हुण साडे कोल की आ रैफ्रिजरेटिंग इफैक्ट साडा वध गया। तो इस केस दे विच असीं देख सकते हैं बाय इनक्रीजिंग द टैंपरेचर आफ्टर कंप्रैशन कि सुपर हीटिड टैंपरेचर जदों हो जाता आफ्टर कंप्रैशन साडी COP की वैल्यू वध जाएगी। COP की वैल्यू हुण किवें वधेगी जिवें कि असीं देखिया कि इस जगह के उत्ते रैफ्रिजरेटिंग इफैक्ट की वैल्यू वध रही है। तो सानूं पता है कि जिहड़ी COP की वैल्यू है वो डायरैक्टली प्रपोर्शनल है रैफ्रिजरेटिंग इफैक्ट दे एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल है वर्क डन बाय द कंप्रैसर। नैक्सट ये ही कुछ वैल्यूज़ दित्तियां हुई ने कि जो मान लो इसे ही फॉर्मूला असी यूज़ करके कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेट करनिया ने क्योंकि अल्टीमेटली असी COP कैलकुलेट करनी है। वो वास्ते मैनू H1 की वैल्यू भी चाहिए है, HF3 की वैल्यू चाहिए है, H2 की वैल्यू चाहिए है, दैन अगेन H1। सो H1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर्मूला असी की यूज़ करांगे HF1 प्लस X1 इंटू HFG1। ये फॉर्मूला कित्थों आया किवें आया लास्ट वीडियो के असी डिस्कस किया सी। सो नैक्सट है H2। ये चीज़ साडे कोल इत्थे नवीं आई है क्योंकि हुण इत्थे H2 जिहड़ा पॉइंट है वो कित्थे लाई कर रहा है वो लाई कर रहा साडा सुपर हीटिड रीजन दे विच। हुण सुपर हीटिड रीजन दे विच जदों लाई कर रहा तुसीं देख सकते हो इत्थे साडे कोल H2 जिहड़ा पॉइंट है सुपर हीटिड रीजन दे विच ये हुण बियॉन्ड द लाइन चला गया। तो इस केस दे विच जो असीं फॉर्मूला यूज़ करना वो कुछ इस तरीके का होएगा जो कवर करेगा मेरी 2- दी भी इंथैल्पी कि इस पॉइंट पर कितनी इंथैल्पी आ रही है प्लस बाकी जो असी इतों कैलकुलेट करनी है। सो वो फॉर्मूला असी बनया सी साडा कुछ इस तरीके दे नाल H2- मतलब 2- दे उत्ते साडी कितनी इंथैल्पी है उहदे विच असी प्लस कर देना CP इंटू T2 माइनस T2- कि जो साडे कोल स्पैसीफिक हीट एट कॉन्सटेंट प्रैशर की वैल्यू है उन्होंने असी मल्टीप्लाई कर देना विद द टैंपरेचर डिफरेंस कि T2 माइनस T2- साडे कोल कितना टैंपरेचर डिफरेंस आया इनू असी उसकी स्पैसीफिक हीट के नाल मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू साडे कोल आएगी उत्थों असी कैलकुलेट कर लांगे कि साडे कोल सैकेंड पॉइंट के उत्ते एंथैल्पी की वैल्यू कितनी आ रही है। सो H2- की वैल्यू किवें कैलकुलेट करनी है ये भी सेम ही है साडा HF2- प्लस X2- इंटू HFG2। सिमिलरली असी थर्ड पॉइंट ते फोर्थ पॉइंट ते कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि थर्ड पॉइंट ते फोर्थ पॉइंट बिल्कुल साडे कोल सेम ही आएंगे क्योंकि दोनों पॉइंट्स के उत्ते इंथैल्पी साडी सेम है जिवें कि तुसीं ग्राफ दे विच देख पा रहे हो। थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट इंथैल्पी दोनों दी सेम है HF3 इज इक्वल्स टू HF4। नाउ वी हैव द नैक्सट कंडीशन जिहदे विच असीं गल करांगे वैन द वेपर्स आर सुपर हीटिड बिफोर कंप्रैशन। हुण असीं डिस्कस किया कि आफ्टर कंप्रैशन जदों साडे कोल सुपर हीटिड कंडीशनस होणगियां उदों साडे पॉइंट्स कित्थे लाई करनगे साडे ग्राफ किवें प्लॉट होने ने। हुण असीं गल करनी है बिफोर कंप्रैशन दी कि कंप्रैशन होण तो पहलां ही सक्शन के टाइम के उत्ते ही साडी कंडीशन ऑफ वेपर्स की है दैट इज़ सुपर हीटिड। सो इस केस दे विच भी एज इट इज़ पहलां गल करांगे टैंपरेचर एंट्रोपी चार्ट दैन असीं गल करांगे प्रैशर एंथैल्पी चार्ट। सो फर्स्ट वन सानू पता है इसका डोम किस तरीके के प्लॉट होना और इस दे डोम दे विच साडे कोल थोड़ी जी टेढ़ापन है दोने वक्रे वक्रे ने।
और ये सानू दोनों का यह भी पता है कि इस केस के कॉन्सटेंट प्रैशर लाइन्स किस तरीके प्लॉट होंदियां ने लिक्विडस रीजन के नीचों उपर नूं फिर कॉन्सटेंट दैन अगेन फिर अबव टैंपरेचर वध जांदा। एक कॉन्सटेंट टैंपरेचर लाइन है, दूसरी असी टैंपरेचर लाइन सॉरी प्रैशर लाइन है और दूसरी प्रैशर लाइन कुछ असी ये ले ली। दोनों प्रैशर डिफरेंसिस के विच असी ग्राफ प्लॉट करना अलग अलग कंडीशनस के लिए। हुण सानू पता है कि जो फर्स्ट पॉइंट साडा है वो कित्थे लाई कर रहा है सुपर हीटिड रीजन के विच। सो सुपर हीटिड रीजन के शो करने के लिए असीं की करांगे इसे कॉन्सटेंट प्रैशर लाइन के उपर किते भी असी फर्स्ट पॉइंट मार्क कर लेना। सो मैं इस जगह के उत्ते कीता। सो फर्स्ट पॉइंट ये कोरसपोंडिंग ही मेरा सैकेंड पॉइंट भी सुपर हीटिड रीजन के विच ही आएगा बिकॉज ऑफ मैनू पता कि ये प्रोसैस किहड़ा मेरा एडियाबैटिक कंप्रैशन का। सो एडियाबैटिक कंप्रैशन होने करके बिल्कुल स्ट्रेट चला गया और दोनों जगह के उत्ते मेरी जो एंट्रोपी की वैल्यू होएगी वो भी बराबर ही होएगी। S1 इज इक्वल्स टू S2 होएगा। सानू पता है नैक्सट जाना है असी कंडेंसेशन प्रोसैस के बारे। और कंडेंसेशन का प्रोसैस की होएगा कॉन्सटेंट प्रैशर के उत्ते ही साडे कोल सिर्फ उसका फेस चेंज होएगा 2 to 2 dash 2 dash to 3 पूरे का पूरा किहड़ा प्रोसैस है साडा कंडेंसेशन का। 3 to 4 अगेन साडा एक्सपेंशन का प्रोसैस है। 4 to 1 dash साडा अगेन इवैपोरेशन। इसे चीज़ नूं ही असी रिप्रजेंट किया है प्रैशर एंथैल्पी चार्ट के अंदर। सो इत्थे असी देख पा रहे हैं साडे कोल जो ग्राफ प्लॉट होया प्रैशर लाइन इत्थे किवें ने बिल्कुल हॉरिजोंटल स्ट्रेट लाइन्स। सो इत्थे साडे कोल फर्स्ट पॉइंट सुपर हीटिड रीजन के विच कर्व प्लॉट की, सैकेंड पॉइंट ते पहुंचे, सैकेंड पॉइंट टू 2 डैश फिर कॉन्सटेंट प्रैशर के उत्ते 2 डैश टू 3 कॉन्सटेंट प्रैशर अगेन। सो इत्थों दी वापस आउंदे होए थर्ड ते आ गए, थर्ड तो फिर फोर्थ साडे कोल एक्सपेंशन का प्रोसैस, 4 to 1 साडा इवैपोरेशन का प्रोसैस। और 4 to जो 1 आना असी 4 to पहला 1 डैश आवांगे फिर 1 डैश टू 1 असी सुपर हीटिड रीजन के विच चले जावांगे। तो इन्हां पॉइंट्स के कोरसपोंडिंग ही साडियां एंथैल्पीज़ दी वैल्यू होणगियां। 1 के कोरसपोंडिंग साडी एंथैल्पी होएगी H1, 2 के कोरसपोंडिंग साडी वैल्यू होएगी H2 एंड 3 ते 4 के उत्ते साडी जो एंथैल्पी होएगी वो सेम होएगी। इत्थे असीं लिख सकते हैं HF3 इज इक्वल्स टू H4 कि दोनों ते साडी एंथैल्पी की वैल्यू सेम होएगी। बाकी नैक्सट असीं गल करनी है कि इसका COP किवें कैलकुलेट करना। असीं जानते ही हाँ कि साडा COP का फॉर्मूला भी की होएगा सेम होएगा। सो COP का फॉर्मूला COP इज इक्वल्स टू N/W H1 माइनस HF3 अपॉन H2 माइनस H1। फॉर्मूला सेम है, कोई फर्क नहीं है। सो इस केस के विच असीं देख पा रहे हैं कि हुण जिहड़ा फर्स्ट ते सैकेंड पॉइंट दोनों ही साडे सुपर हीटिड रीजन के विच लाई कर रहे हैं। सो असीं डायरैक्टली इहदी वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते। सो सानू H1 की वैल्यू कढ़न के लिए पहला H1 डैश कढ़ना पएगा एंड H2 डैश कढ़ना पएगा फॉर सैकेंड पॉइंट। सो वो चीज़ असी किवें कैलकुलेट करनी है। नीचे असी कुछ रिलेशनस दिते हुए हैं जिवें असी हुणे डिस्कस भी किया पिछले कंडीशन दे विच कि H1 की वैल्यू होएगी साडे कोल H1 डैश प्लस CP इंटू T1 माइनस T1 डैश कि साडे कोल जिहड़ियां फर्स्ट टैंपरेचर के कोरसपोंडिंग जो वैल्यूज़ होणगियां उन्हां दियां डिफरेंस नूं जदों असी मल्टीप्लाई करांगे स्पैसिफिक हीट एट कॉन्सटेंट प्रैशर दे नाल उहनूं असी एड ऑन कर देना, सम अप कर देना H1 दे विच जो असी कैलकुलेट करांगे। सो इस तरीके दे नाल ही हुण इत्थे देखदे हां जी पहलां टैंपरेचर डिफरेंसिस आपां किवें किवें लैणे ने। हुण इत्थे है इहदे रिस्पैक्टिव जो टैंपरेचर आएगा मेरा दैट इज़ T1 डैश और इस फर्स्ट पॉइंट के कोरसपोंडिंग थोड़ा जिहा उपर इस जगह ते रिप्रजेंट करेगा साडा T1। सिमिलरली सैकेंड पॉइंट इहदे रिस्पैक्टिव इहनूं असीं सुपर हीटिड टैंपरेचर भी कहने आ T2 और T2 डैश इस दे रिस्पैक्टिव इत्थे आ जाएगा जिहड़ा कि T3 दे बराबर होएगा। सो इस तरह ही असीं इहदा COP कैलकुलेट कर लांगे। आई थिंक तुहानूं ये सारा टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया होएगा। सो कमेंट करके जरूर दस्सिओ कि तुहानूं ये वीडियो किन्ने क नॉलेजेबल रही, किन्नी क तुहाडी नॉलेज दे विच वाधा कीता इसने, किसी तरह की कोई खामी रह गई होवे, कोई कमी पेशी रह गई होवे तो कमेंट करके प्लीज़ जरूर दस्सिओ। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल जी।